لانگ مارچ کے دوران مقدمات عمران خان کی ضمانت قبل از وقت گرفتاری منظور۔ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی چیئرمین کو 25 جون تک گرفتار کرنے سے روک دیا۔ عمران خان کو 50,000 کے مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسد کیسر اور حماد اظہر کی عبوری ضمانت منظور کر لی۔ تحریک انصاف آج شانگلہ میں پاور شو کرے گی۔ عمران خان کارکنوں سے خطاب کریں گے۔ جلسے کی تیاریاں جاری۔ پاکستان کو دشمنوں سے بہت خطرہ ہے، ہمیں طاقتور فوج چاہیے۔ عمران خان کی نجی ٹی وی سے گفتگو۔ کہا اللہ کا شکر ہے ہماری فوج تگڑی ہے، کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پاکستان اس وقت فیصلہ کن مرحلے پر کھڑا ہے، درست فیصلے نہ کیے تو سالمیت کو خطرہ ہے۔ پاکستان کے خلاف امریکہ، اسرائیل اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ موجودہ سیٹ اپ کی وجہ سے پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ ایسا ہوا تو سب سے پہلے اثر فوج پر پڑے گا۔ پاکستان کے 3 حصے ہو جائیں گے۔ میمو گیٹ اور ڈان لیکس والے بھی سینہ کوبی کر رہے ہیں۔ ان میں وہ چہرے بھی ہیں جنہوں نے کہا تھا شکر ہے پاکستان بنانے کے جرم میں شامل نہیں۔ اپوزیشن لیڈر سینٹ شہزاد وسیم کا سینٹ میں بیان۔ شاہ محمود قریشی بولے عمران خان ہمیشہ مضبوط فوج کے داعی رہے ہیں، وہ اداروں کو مضبوط اور مستحکم دیکھنے کے حامی ہیں۔ ماضی میں جب ہم سے غلطیاں ہوئیں تو ملک 2 لخت ہو گیا۔ فیصل جاوید بولے عمران خان نے ہمیشہ ملک کو یکجا کیا اور کئی بار کہا کہ ملک کے لیے نہیں، میں نہیں، فوج ضروری ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں عمران خان کے بیان پر ایجنڈے کے تحت واویلا کیا جا رہا ہے، یہ چاہتے ہیں پاکستان کو نیچے لے جائیں اور کوئی شور بھی نہ مچائے۔ ایک تو جو فوج کا ادارہ ہے کبھی اس کے خلاف بات نہ کرو، کیونکہ فوج ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہماری فوج نہ ہوتی تو یہ ملک نے نہیں رہنا تھا۔ عمران خان سے زیادہ اس ملک کو ضرورت پاکستانی فوج کی ہے۔ عمران خان ملک دشمنوں کی سازشوں سے کئی بار قوم کو آگاہ کر چکے۔ 20 اپریل کو سوشل میڈیا پر سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر فوج نہ ہو تو ملک کے 3 حصے ہو جائیں۔ مجھ سے زیادہ فوج ملک کے لیے ضروری ہے، ہمیں ہمیشہ اس ادارے کو مضبوط کرنا ہے۔ پاکستان کی عدالتوں سے اشتہاری مفرور ملزم سلیمان شہباز وزیر اعظم شہباز شریف کے ہمراہ بیرون ملک دوروں میں ساتھ۔ سلیمان شہباز کی اہلیہ کے ہمراہ ترک صدر کے عشائیے میں شرکت۔ اشتہاری ملزم پاکستان اور ترک سربراہان مملکت کی میز پر بیٹھے نظر آئے۔ سلیمان شہباز دورہ سعودی عرب میں بھی سرکاری وقت میں شامل تھے۔ سلیمان شہباز اور ان کی اہلیہ کس حیثیت میں سرکاری دوروں میں شامل ہیں، سوالات اٹھ گئے۔ ہم نے بھی فوج پاکستان پہ تنقید کی ہے، لیکن صرف تنقید مثبت کی ہے، اس لیے کی ہے کہ اگر کوئی لائن کراس ہو رہی تھی تو اس کی نشاندہی کی ہے تاکہ ان پر انگلیاں نہ اٹھیں، اپنے اقتدار کے لیے نہیں کی۔ ہم نے بھی افواج پاکستان پر تنقید کی، لیکن ہماری تنقید مثبت تھی۔ مریم نواز کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا خود کو جہادی لیڈر کہنے والا اب ضمانتی لیڈر ہے۔ ڈرپوک رانا ثناء اللہ کے ڈر سے پشاور کے بنکر میں چھپ کر بیٹھا ہے۔ جس مینڈیٹ کا یہ سوگ منا رہے وہ ان کا کبھی تھا ہی نہیں، اب یہ ناکامی کا ملبہ ملک پر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان کے پی حکومت کے وسائل پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ ملزم ٹرائل میں عدالت کا فیوریٹ چائلڈ اور ڈارلنگ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ڈاکیومنٹ ٹرائل میں کسی ملزم کے خلاف استعمال ہوتا ہے تو وہ اس کو دینا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملزم اپنا دفاع تیار کر لے۔ ایون فیلڈ کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ریمارکس۔ میری موکل کو جن خطوط کی بنیاد پر سزا دی گئی وہ فراہم ہی نہیں کیے گئے۔ ٹرائل کورٹ میں اخبارات پڑھ کر جرح کرتا رہا۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں نیب پروسیکیوٹر کا دلائل سے گریز۔ کہا نیب کے قوانین میں ترمیم کا بل سینٹ اور قومی اسمبلی نے پاس کر دیا۔ سپریم کورٹ میں بھی سوموٹو کیس زیر سماعت ہے۔ سپریم کورٹ نے آبزرو کیا اہم ترین کیسز میں مداخلت ہو رہی ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ جب صدر کے دستخط سے قانون بنے گا تو پھر دیکھیں گے۔ تربیلا ڈیم پر ہائیڈرو پاور پروجیکٹ 4 میں بے ضابطگیاں۔ نیب نے سابق چیئرمین رابطہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کو 6 جون کو طلب کر دیا۔ مزمل حسین پر قومی خزانے کو $753 ملین نقصان پہنچانے کا الزام ہے۔ مزمل حسین پر اختیارات اور سرکاری فنڈز کی غلط استعمال،
3 बरस में करप्शन और सुस्त रवि के बायस खजाने को अरबों रुपए के नुकसान पहुंचाने और कॉन्ट्रैक्ट्स को गलत अदायगियां कराने का भी इल्जाम है। पंजाब असेंबली की 5 मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया, आज ही सुनाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के वकील ने दलाइल दिए कि अगर कोई रुकन नाअहल होगा तो उसी पार्टी का रुकन तैनात होगा। इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशिस्त के अरकान में रद्दोबदल नहीं होता। आइन में कोई कमी है तो भी हल करना पार्लियामेंट का इख्तियार है। नून लीग के वकील बोले 25 अरकान के डी नोटिफाई होने पर मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल नहीं, असेंबली के मौजूदा तनासुब से अरकान की नामजदगी की जाए। इलेक्शन कमीशन मुतनाज़े है। जो 2 अरकान चेयरमैन लोटा एसोसिएशन राजा रियाज के ताउन से लगाए गए उन्हें मुअज़्ज़िज़ भी नहीं कहा जा सकता। फवाद चौधरी कहते हैं मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन ना करने की वजह पंजाब में गैर कानूनी हुकूमत को तूल देना है। हमजा शहबाज के पास अक्सरियत नहीं, वो अक़लियती वज़ीर आला है। लाहौर हाई कोर्ट में केस तो रफ्तारी से चल रहा है। कौमी असम्बली मकबूजा है, ऐसी असम्बली में जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गैलरी में इलेक्शन हुआ, पुलिस अंदर घुस गई। क्या गवर्नर आंखें बंद करके हलफ लेने का पाबंद है? किसी के वोट कम हो और डिप्टी स्पीकर उसकी जीत का नतीजा भेज दे तो क्या गवर्नर फिर भी हलफ लेगा? क्या गवर्नर देख नहीं सकता कि जालसाजी हुई है? जिन्होंने वोट दिए वो अहल हैं कि नहीं? इलेक्शन में खुली खिलाफ वर्जी हो तो क्या गवर्नर फिर भी हलफ लेने का पाबंद है? हमजा शहबाज केस में लाहौर हाई कोर्ट के सवालात। लीगी वकील बोले गवर्नर जज नहीं कि फैसला करे, वो हलफ लेने का पाबंद है। हलफ ना लेना आइन की खिलाफ वर्जी होगा। फॉरेन फंडिंग केस, इलेक्शन कमीशन की पीटीआई के फाइनेंशियल एक्सपर्ट को 5 रोज में ब्रीफिंग मुकम्मल करने की हिदायत। वकील को दलाइल के लिए 2 दिन दे दिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स दिए, इल्जाम लगाना आसान, साबित करना मुश्किल होता है। जो सवालात होंगे उनकी तफसीलात मांग देंगे। बैंक फंड्स का मुआवजना करने के बाद अब क्या रह गया है? तेरह पार्टियों की हुकूमत ने फैसला साजी में ताखीर की, जिससे माशी मुश्किलात पैदा हुई। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हुए, मार्केट पर दबाव आया। IMF को साथ लेकर नहीं चलेंगे तो कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा। शौकत तरीन कहते हैं महंगाई का सुपर साइकिल पाकिस्तान समेत दुनिया भर को मुतासर कर रहा है। हमारे दौर में मुल्क में एक्सपोर्ट 27% बढ़ी, तरसीलात ज़र में भी 7% के करीब इजाफा हुआ। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग, आवाम के पसीने छूट गए। गर्मी से बुरा हाल, मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7,500 से तजावुज कर गया। शहरों में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग, देहात में 12-12 घंटे बिजली गायब। हुकूमत के आने से किसी चीज की सस्ताई नहीं हुई है। ये करप्ट लोग आए हैं ना हुकूमत में, सिर्फ इन्हीं का फायदा हुआ है। तेल 700 रुपए, घी 700 रुपए, बंदा क्या खाए? ये अपने कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं। इन्होंने तो ऐसा निज़ाम कर दिया हमारे लिए तो जीना हराम कर दिया। तहरीक इंसाफ का महंगाई और लोड शेडिंग के खिलाफ कल एहतजाज का ऐलान। फारूक हबीब कहते हैं इमरान खान की हिदायत पर मुल्क गिर एहतजाज किया जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत की नाअहली, गलत पॉलिसियों के बायस लोड शेडिंग है। महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, जिससे अवाम को मुश्किलात हैं। हम्माद अजहर का वजीर बिजली और वजीर पेट्रोलियम से इस्तीफे का मुतालबा। कहा जो प्लांट हमारे दौर में बंद ना हुए वो अब बंद हैं या 25% पैदावार दे रहे हैं। बद इंतजामी की इंतहा हो चुकी और कोई पूछने वाला नहीं। सिटी कोर्ट कराची में वकला और अदालती मुलाजमीन में तसादुम। वकला की जानिब से चौकीदार पर तशद्दुद और जजेस के दरवाजे बंद करने के मामले पर वकला और अदालती मुलाजमीन आमने सामने आए। मुतादिद जख्मी, पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट से मुलाकात के बाद वकला ने एहतजाज आर्जी तौर पर खत्म कर दिया। निमरा काज़मी की उम्र 17 और 18 साल के दरमियान है। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। निमरा काज़मी के शौहर की केस खत्म करने की इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच मकवी फहमीदा की अदम बाजियाबी पर सख्त बरहम। पुलिस की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। SSP सखर को नाअहल करार दे दिया। DIG को शो कॉज नोटिस जारी।
आज़ादी इजहार राय पर हमले हो रहे हैं। ARY न्यूज़ को बंद किया जा रहा है। केबल पर पोजीशन तब्दील की जा रही है। कई सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो चुके। वजारत इत्तलात कौन चला रहा है? फैसल जावेद का सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में सवाल। चेयरमैन पेमरा ने मौक़िफ़ अपनाया। खालिद आराइन को बुलाकर पूछ लें कि हमने चैनल्स बंद करने का कहा, जिस पर चेयरमैन कमेटी ने कहा आप चैनल खुलवा सकते हैं तो बंद भी करा सकते हैं। चैनल्स की मुकम्मल तफसीलात दें। एंकर पर्सन अरशद शरीफ बोले कुछ अशखास और इदारे खुद को रियासत समझना शुरू हो गए हैं। कमेटी IGs को बुलाकर पूछे सहाफ़ियों पर कैसे मुकदमे दर्ज हुए। ARY न्यूज़ को बंद करने वाले केबल ऑपरेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साबिर शाकिर ने कहा मुल्क से बाहर हूँ, धमकियाँ मिल रही हैं, वापसी पर जहाज से उठा लेंगे। मरियम औरंगजेब से हल्फिया पूछा जाए, वजारत कौन चला रहा है? अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी। कराची, लाहौर, मुल्तान, गुजरावाला, पेशावर और नौशहरा के कैंट एरियाज में मुख्तलिफ इलाकों में ARY न्यूज़ को केबल से हटा दिया गया। लाहौर में 4 स्टार, लाहौर डिजिटल, लोही टेक और वर्ल्ड कॉल, ब्राइट मल्टीमीडिया और मुगल केबल, मुल्तान में अल्फा और सिटी केबल, पेशावर में 5 स्टार और यूनिवर्सल केबल, नौशहरा में ओके केबल, गुजरावाला में पेगासस केबल ने ARY न्यूज़ की नशरियात बंद कर दी। कराची मलिक कैंट में भी बतीन ने नशरियात बंद कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ARY न्यूज़ का नंबर तब्दील न करने का हुक्म दे चुके हैं। वाज़ेह अहकामात के बावजूद नंबर्स तब्दील करने वाले तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। शारकीन क्रिकेट के लिए खुशखबरी। ARY कम्युनिकेशन ने वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग के हुकूक हासिल कर लिए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ रवां माह 3 वनडे और सितंबर में इंग्लैंड के खिलाफ 7 T20 मैचेस ARY ज़ैप पर लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देखे जा सकेंगे। ARY नेटवर्क के सदर और चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान इकबाल कहते हैं PCB के टेंडर में सबसे बड़ी बोली लगाई, लाइव स्ट्रीमिंग पार्टनर बनने पर फख्र है। फैंस की ज़रूरियात को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ने को तरजीह दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,38,300 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 1,18,570 रुपए का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,190 दिरहम हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।